حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علی جناب عزت مآب استاذ گرامی ماسٹر محمد اعجاز انصاری صاحب کی لاڈلی بچی کی شادی کے موقع پہ محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ نکاح کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے نکاح ہم سب کرتے ہیں، اور نکاح کرنا کبھی کبھی فرض ہے، کبھی کبھی واجب ہے، کبھی کبھی سنت ہے۔ تو اس مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ دیواروں در، آپ نے جو کلام پیش کیا ہے اسی حوالے سے نعت کا شعر سنیے گا اور سن کر مچلیے گا، بس تو نبی کی نعت ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیوار واقعی حضور کے آنے سے سب کو خوشی تھی، دنیا میں ایک ہی شخص تھا جو پریشان تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو حضور جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو میرے بھائی میرے دوستو سب کو چین و سکون مل گیا، ظالموں کا خاتمہ ہو گیا، اور پھر سے چین و سکون کی ایسی گنگا چل پڑی، ایسی ہوا چلی کہ ہر آدمی اس میں مست ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ دیواروں در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں، دائی حلیمہ کی کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، بولے فرشتے دائی حلیمہ کی کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، اور سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، سنت ہے جبرائیل کی بدعت نہیں ہے یہ، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور عاشق نے غار ثور میں عاشق سے یہ کہا، یہ شعر کو سمجھانے کے لیے آپ کا 2 منٹ لوں گا۔ اکثر میں پڑھتا ہوں تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ شعر کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچ پاتے ہیں۔ حضور جب ہجرت فرما رہے تھے، یعنی مکہ شریف سے مدینہ جا رہے تھے، تو میرے بھائی میرے دوست حضور نے راستے میں جس غار میں آرام فرمایا تھا، جس غار میں حضور نے آرام فرمایا تھا، وہ غار کو غار ثور کہا جاتا ہے، اور غار ثور کہا جاتا ہے۔ اور حضور کے ساتھ ہجرت کی شخص کون تھے؟ وہ صدیق اکبر کی ذات گرامی تھی، سبحان اللہ، حضور کے ساتھ تھے۔ کہ حضور جب مکہ شریف سے مدینہ کے لیے ہجرت فرما رہے تھے، ساتھ میں یار غار مصطفیٰ یعنی صدیق اکبر کی ذات گرامی میں داخل ہونا چاہتے ہیں قیام کے لیے، آرام کے لیے۔ حضرت صدیق اکبر جو یار غار مصطفیٰ ہے، جو خلیفہ اول ہے، حضور سے کہتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا سا آپ ٹھہر جائیں، تھوڑا سا ٹھہر جائیں، غار کے اندر پہلے مجھے جانے دیں، ہو سکتا ہے غار کے اندر کوئی موذی جانور ہو، کیونکہ غار کا نقشہ بتا رہا ہے کہ برسوں سے اس کے اندر کوئی نہیں داخل ہوا ہے، یہاں مکروں کا جھالا لگا ہوا ہے، اس لیے یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں گا اس کے اندر، اگر کوئی موذی جانور ہوگا یا اگر کوئی تکلیف پہنچانے والا چیز ہوگا تو اسے میں کنارے کر دوں گا، اور اگر تکلیف کو پہنچائے گا بھی تو مجھے پہنچائے گا، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، اس لیے میرے آقا غار کے اندر پہلے میں جاؤں گا، اس کی صفائی کروں گا، پھر آقا بعد میں آپ تشریف لے جائیے گا۔ حضور فرماتے ہیں صدیق ٹھیک ہے جاؤ اندر۔ میرے بھائی میرے دوستوں بتانا یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سانپ تھا،
जो नबी का बहुत दीवाना था, नबी का चाहने वाला था, नबी से प्यार करने वाला था, वो अस्तहा कहता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कि अल्लाह के नबी, आप तो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन सुनिए, मैं नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमे पैगंबरा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करना चाहता हूँ, उनको मैं देखना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं सांप तू पागल हो गया है, अभी उनका जमाना थोड़ी आने वाला है, अभी तो उनका जमाना आने में बरसों वक्त है, सुनो अभी तो मेरा जमाना है, इसके बाद बहुत सारे अंबिया कराम आएंगे, उसके बाद वो लास्ट में आएंगे, वो आखिर में आएंगे, वो खातिमुल मुरसलीन का वो ताज लेकर के आएंगे, खातिमुल अंबिया का वो ताज पहन करके आएंगे, वो बाद में आएंगे, वो लास्ट में आएंगे, उनके बाद कोई नबी नहीं होगा। इसलिए सुनो सुनो अभी बहुत जमाना गुजरा बाकी है। अस्तहा कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि हुजूर जब आएंगे, मोहम्मद रसूल जब आएंगे, हमें बता दीजिए, चाहे जब आना है हुजूर तशरीफ लाएं, मेरे दिल में ये इश्तियाक है, मेरे दिल में ये ख्वाहिश है कि मैं उनका दीदार करना चाहता हूँ, मैं उनको देखना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये बहुत बड़ा दीवाना है, ये सांप है, तो क्या हुआ, जाओ जाओ एक पहाड़ के अंदर पनाह ले लो, हुजूर जब आएंगे तो हुजूर को उनकी उम्मती जब परेशान करेंगी, जब सताएगी, तो हुजूर हिजरत फरमा करके मक्का से जब मदीना जाएंगे तो उसी गार में आराम करेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए उसी गार में चले जाओ, वहीं तुम ज़ियारत कर पाओगे, वहीं मुलाकात कर पाओगे। वो गार कौन सा था, वही गार गारे सौर है। सांप को पता मिल गया ईसा अलैहिस्सलाम से, सांप जाकर के उसमें पनाह ले लिया कि चलो चलो हुजूर जब भी आएंगे इस गार में जरूर आएंगे, जैसे इस गार में आएंगे मैं देख लूंगा, मैं दीदार कर लूंगा, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। सांप उसी इंतजार में बैठा हुआ था उस गार में, किस लिए कि हुजूर का जलवे ज़ेबा देख लिया जाए, हुजूर के काले कमली का दीदार कर लिया जाए, हुजूर के जुल्फे मुहम्मदी का दीदार कर लिया जाए, हुजूर के चेहरा को देखने के लिए, जलवे रहमत को देखने के लिए वो इस इंतजार में बरसों से बेकरार था। सांप इंतजार में था, वो घड़ी आ गई, वो लम्हा आ गया, वो वक्त आ गया। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर है, ये भी नबी के आशिक है, ये भी नबी के दीवाने हैं। एक तरफ नबी का आशिक सांप है जो पहले से गार में मौजूद है, दूसरी तरफ नबी का दीवाना सिद्दीक है जो ये कह रहे हैं कि गार के अंदर पहले मैं जाऊंगा, उसकी सफाई पहले मैं करूंगा, अगर कोई मूसी जानवर होगा मैं उसे भगा दूंगा या रसूल अल्लाह, ताकि आपको कोई तकलीफ न पहुंचा सके, आपको कोई परेशान न कर सके। सिद्दीक अकबर गार के अंदर दाखिल होते हैं, गार की सफाई करते हैं। अल मुख्तसर उन्होंने अपना कपड़ा फाड़ करके पूरे गार की सफाई की। सिद्दीक अकबर ने यहाँ तक के गमछा फाड़ दिया, अपना रुमाल फाड़ दिया, गार की सफाई की, और जहां जहां सुराख उन्हें नजर आया अपना कपड़ा फाड़ फाड़ के उस सुराख में डाल दिए ताकि कोई मूसी जानवर न बाहर आ जाए। सब जहां तक उनकी नजर काम की उन्होंने बंद कर दिया, सफाई हो गई गार की। लेकिन ये भी कमाल देखिए, मर्ज़ी मौला देखिए, मशीयत इलाही देखिए, जिस सुराख में सांप बरसों से मौजूद था वही सुराख बचा रह गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कैसे कैसे नबी के दीवाने होते हैं। कब से सांप इंतजार में था कि हुजूर का दीदार कर लूं, हुजूर के जलवों को देख लूं। सब छेद को, सब सुराख को हजरत सिद्दीक ने बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख बाकी रह गया, और वो कौन सा, जिसमें वही सांप मौजूद था जो ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से इंतजार में था। मेरे भाइयों, जैसे हुजूर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर के जानू पे अपना सरे मुबारक रख करके आराम करने लगते हैं। हुजूर सो जाते हैं। सांप ने देखा, अरे हुजूर की खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है कि जिनके इंतजार में हम लोग बैठे थे वो नबी रहमत की आमद हो गई है, वो इमामुल अंबिया की आमद हो गई है, वो खातिमुल मुरसलीन की आमद हो गई है। खुशबू बता रही है कि हुजूर आ गए हैं। अब सांप जैसे ही बाहर निकलना चाह रहे थे, उतने में एक सांप है जो नबी का आशिक और दूसरा नबी का आशिक सिद्दीक अकबर है जो बैठे हैं, उनकी गोद में सर रख के हुजूर आराम कर रहे हैं, नबी आराम कर रहे हैं। सांप बाहर निकलना चाह रहा है, सिद्दीक अकबर की नजर उस सुराख पे पड़ गई। अरे सबको तो मैंने बंद कर दिया, ये छूटा क्या, कैसे, ये कैसे बाकी रह गया। अब नबी का ये भी आशिक, वो भी आशिक। अब देखिए सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि बैठे बैठे अपना पांव बढ़ाया, अपने अंगूठे से उस सुराख को भी बंद कर दिया। सुभान अल्लाह, उस सुराख को भी बंद कर दिया।
गोद में तो हुजूर आराम कर रहे हैं, हरकत की हिम्मत नहीं है कि हुजूर कहीं बेदार न हो जाए, हुजूर के आराम में कहीं खलल न वाक़ हो जाए। नबी का आशिक देखिए कैसा होता है, और एक आशिक वो है जो सांप की शक्ल में है, वो नबी को देखना चाहता है, सुराख से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन सिद्दीक ने अंगूठा लगा दिया। अब सांप अंदर से बेचैन, अरे बाप रे ये क्या हुआ, परसों से इंतजार में थे, ऐसा लगता है कि ये भी मौका हाथ से जाएगा। अब सांप बेचारा जो परसों से इंतजार में है, वो हजरत सिद्दीक के अंगूठे में गुदगुदी कर रहा है, किसी तरह से अंगूठा हटे और जलवे रहमत सामने आ जाए। लेकिन इधर भी नबी का आशिक बड़ा ठोस है, ये भी नबी के आशिक सिद्दीक अकबर कह रहे हैं तुमको जितना रगड़ना है रगड़ लो, ये अंगूठा टस से मस होने वाला नहीं है। अल मुख्तसर, सांप ने मजबूरन कहा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सांप ने अपना जलवा दिखाया, कहा अंगूठा हटवाने के लिए एक ही रास्ता है कि मैं डस लूं। जबकि सांप का ये हिम्मत अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं भी नबी का दीवाना हूं और ये भी नबी के आशिक है, मैं कैसे डसूं। लेकिन उनको तो जिस इंतजार में थे, जलवे रहमत देखना था, कहा अगर ये मौका हाथ से गया तो मामला तमाम, हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। सांप ने अल मुख्तसर डंक मटस दिया, डसा जैसे ही डसना था। मेरे भाई आज कोई नया सांप काट ले तो फौरन हमारा मामला तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी। धीरे से अंगूठा उन्होंने सरकाया, जैसे अंगूठा हटना था, सांप ने अपना मौका पा लिया और हुजूर का दीदार कर लिया। हुजूर के जलवे आरा को देख करके वो बेकरार हो गया। वो जिस इंतजार में था, उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। वो जियारत करके तो चला गया, वो जिस इंतजार में था उसका काम तो हो गया। अब लेकिन सिद्दीक को जो दर्द का एहसास हुआ, जहर काम करना शुरू किया, धीरे धीरे पूरे बदन में फैलने लगा। लेकिन सिद्दीक हरकत करे तो कैसे करे, क्योंकि गोद में इमामुल अंबिया आराम कर रहे हैं, गोद में हुजूर सो रहे हैं। मेरे भाइयों, हजरत सिद्दीक अकबर ने जहां तक कोशिश थी उन्होंने हरकत नहीं किया, लेकिन जहर का जब असर पूरा बदन में फैलने लगा, एक कतरा आंख से आंसू निकला, हुजूर के रुखसार पे गिरा। गिरने के बाद जैसे ही हुजूर के चेहरे अनवर पे सिद्दीक का आंसू का कतरा पड़ा, हुजूर ने आंखें खोल दिया। हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सिद्दीक आप रो क्यों रहे हैं, आप परेशान क्यों हैं। सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप फिर कुर्बान हो, मैं नहीं रोता, मैं नहीं परेशान होता, लेकिन या रसूल अल्लाह ऐसा लग रहा है कोई पुराना सांप मुझे डस लिया है, जिसका जहर मेरी बॉडी में फैल रहा है, और उसकी तकलीफ, उसकी कराहत, उसकी परेशानी, उसकी शिद्दत हमें सहा नहीं जा रहा है। इसलिए या रसूलल्लाह ये तकलीफ की वजह से सिद्दीक अकबर से हुजूर कहते हैं ए मेरे सिद्दीक आप अंगूठा हटा दीजिए, क्योंकि उस सुराख में मेरा दीवाना बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह, हुजूर को सब पता है। और हुजूर ने अपना लुआब निकाला, सिद्दीक के अंगूठे पे लगा दिया, जहां पे सांप ने डसा था। फौरन हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर का जहर जिस्म से खत्म हो गया। वो थूक का असर देखिए, लुआब का असर देखिए कि बड़ी बड़ी मेडिसिन जहां काम नहीं करता है, वहां नबी रहमत का लुआब काम कर जाता है। सुभान अल्लाह, आनन में जिस्म ठीक हो गया। मेरे भाइयों, जहर खत्म हो गया। सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे। अब वो शेर सुनिए मेरी गुफ्तगू मुकम्मल। शायर कहता है दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। किया